Hello student of 9th class. Good afternoon everybody. Now our topic is going on the lines, angles and triangle. So I have discussed the angles, points, line, etc. Today we will discuss about the parallel lines and transversal. So two or more than two lines parallels. Suppose that this line and this line parallel and symbol is they use the parallel. Okay. Another line, these lines are parallels, two lines. Okay. Another line intersect the two lines. This line is called the transversal. Okay. After transversal, okay student, these two lines AB and CD are parallels each other. Okay. And XY is the transversal because they intersect AB, XY line intersect AB and as well as intersect CD. So this is XY is a transversal. Okay. So given condition AB parallel CD and XY transversal. ये मेरा हम लोग का टॉपिक का चैप्टर है. जब इसमें जब फिगर बन जाएगा, okay, they make this form. So there are the 8 angles here. देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There are 8 angles formed. All 8 angles एक दूसरे के साथ रिलेशन बेटा. रिलेशन क्या रिलेशन? There are 4 angles are created. देखो. So corresponding angles. So corresponding angles is here in this figure. So understanding. So upper part of this angle is the corresponding of this angle. Agar. So these are called the pair of corresponding angle. And in this condition, for the parallel condition, the pair of corresponding angles always equal. Okay? So keep it in mind, you have to remember always. Okay, so corresponding angle to here is AB the upper. AB the also, it is also corresponding this angle. This is the lower part of the AB and this angle is the lower part of the CD and same side of the transversal. So it is called the pair of corresponding angle. Pair of corresponding angle always equal. अगर suppose a angle का measurement यदि x लाओ, it is also x होगा. ठीक है ना बेटा? So a इसके साथ a pair हुआ, तो इसके साथ a angle equal हुआ. फिर a angle के साथ a angle equal होगा. अगर a angle को हम लोग फाइंड करोगे, a angle का वैल्यू हम लोग कैसे? This is the straight line, transversal is a straight line, so it is value the 180 degree minus x. So it is also 180 degree minus x. The pair of two corresponding angles always equal. Now come to the alternate interior angles. So pair of corresponding angles, this understand here. This is also angle of the corresponding angles. This is also the corresponding angle. Pair of corresponding angles. Okay? समझ गए चीज बेटा? इस हम लोग को corresponding angle को समझ गए सेम साइड होना चाहिए. Upper part of the lines and lower part of the angles angle form होगा. Here the pair of corresponding का बारे में सबको जानकारी हो चुका है. Pair of corresponding angles always equal each other. So अगर यदि a 30 डिग्री होगा, a भी 30 डिग्री होगा, अगर a 60 डिग्री होगा, a भी 60 डिग्री होगा. The another pair this angle lower part angle 180 degree minus c because x y is a straight line. मतलब straight angle हम लोग का ले लेंगे. Now coming to the alternate interior angle. Alternate interior angle ठीक opposite side of the transversal होना चाहिए. ठीक है ना? Alternate interior angles there are देखो these form this angle 1 2 3 4 these angle are the interior angles and another 1 2 3 4 outside इसको बोलते हैं exterior angles. Okay. So interior alternate angles हम लोग कैसे ये भी देखो pair of interior angles this angle देखो this angle this is the alternate interior angles. ये भी pair होगा and all pair of alternate angles for the parallel lines always equal होगा. अगर इसको हम लोग का यदि तुम्हारा एंगल कोई भी वैल्यू हम लोग को लाओगे, so this is the y, so it is also y होगा. ठीक है ना बेटा? समझ गए चीज को? ये because the alternate angle सबसे पहले. Okay, this is the alternate interior angles. ठीक इसके बाद देखो और एक चीज है ऑल्टरनेट ए भी दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होगा. ये यदि हम लोग x होगा इसके साथ ये ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा बेटा. समझ गए चीज को बेटा? देखो एक very clearly close pair of alternate interior angles always equal. ठीक as well as pair of alternate exterior angle ये भी equal. exterior angle में क्या होगा? outside देखो. exterior देखो this is देखो this angle is equal to this angle. This is the pair of
पेयर ऑफ एक्स डी ऑल्टरनेट, ये एंगल का वैल्यू यदि एक्स लिया इट इज ऑल्सो एक्स, ठीक है बेटा। ठीक पेयर ऑफ दिस एंगल वैल्यू यदि हम लोग का देखो वाई लाओगे तो ए एंगल ऑल्सो वाई आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलो यहाँ पे देखो दो चीज का ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल एंड ऑल्टरनेट इंटर एंगल कॉम्बिनेशन, देखो पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटर एंगल and pair of alternate exterior angle always equal each other. Next come the interior angles on the same side of the transversal. Interior into the ये भी तक हम लोग को समझना चाहिए कि interior angles on the same side of the transversal. Transversal बोलते x y का center all. This is the and interior angle देखो these only a four angle. The 1, 2, 3, 4 are the interior. Same side बने x and y. These two angles are called the interior angles. इसको बोलते हैं हम लोग का इंटीरियर एंगल्स का जाता है, ठीक है ना। ये एंगल तुम्हारा का नाम है तुम्हारा फर्स्ट देखो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ये भी कहा जाता है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कहा जाता है, बा एजर इन अनदर नेम को इंटीरियर एंगल, सो के इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल भी कहा जाता है। दिस एंगल को इंटीरियर एंगल्स कहा जाता है एंड इसको भी कहा जाता है एलाइड एंगल्स, इट इज ऑल्सो एलाइड एंगल। देखो ए भी देखो इसके साथ एलाइड एंगल होगा, ठीक है ना। इसको हम लोग को समझ में चीज को तो हम लोग को क्लियर हो गया। अब बस क्लियर कर देते हैं यहाँ पे देखो दिस एंगल वैल्यू ऑफ ओके दिस एंगल वैल्यू, एक जो एंगल का है यही एंगल तुम्हारा को इंटीरियर एंगल्स, दिस एंगल और दिस एंगल को इंटीरियर, दिस एंगल और दिस एंगल सेम साइड होना चाहिए। देखो दिस राइट हैंड इज द लेफ्ट हैंड, देयर आर द को इंटीरियर एंगल एंड को इंटीरियर एंगल्स। समझ गए चीज बेटा। अगर को इंटीरियर एंगल देखो ए को इंटीरियर एंगल्स एंड एट रिलेशन देखो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये वाला तुमको याद रहने पड़ेगा, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स ऑलवेज 180 डिग्री होगा। सपोज इसको देखो वैल्यू y, ओके ये वैल्यू y इसका हम लोग का x, देयरफॉर x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। ये कंडीशन हम लोग को यूज करेंगे, ठीक है ना। अगर कब से कंडीशन इसको फॉलो करोगे जब अगर ए बी लाइन दिस लाइन है दिस लाइन पैरेलल एंड एक्स वाई द ट्रांसवर्सल देन वी फॉलो दिस, ठीक है ना बेटा। कॉरस्पॉन्डिंग क्रॉस पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होगा, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटर एंगल इक्वल होगा, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा, इंटर सम ऑफ द को इंटर एंगल ऑलवेज 180 डिग्री। ओके सो द फ्यू क्वेश्चन आई विल एक्सेप्ट। ओके स्टूडेंट द एनसीईआरटी बुक से हम कुछ सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। एक्सरसाइज 6.2 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। द क्वेश्चन ऑलरेडी देखो क्वेश्चन 1 फिगर फ्रॉम द फिगर क्वेश्चन तो फिगर में दे चुका है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y and show that AB parallel to CD, ठीक है। इन दिस गिवन फिगर देखो हियर लुक एट दिस फिगर देखो 50 डिग्री, दिस एंगल इज 50 डिग्री एंड दिस एंगल x। सो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देखो these two angles is a straight angle, okay straight angle always 180 degree, so you will find x equal to 180 degree minus 50 degree। कौन सा कॉज में हो रहा बताओ, इट इज द स्ट्रेट एंगल। कौन सा बताओ, स्ट्रेट एंगल्स, ठीक है ना। कॉज लिख दोगे बेटा स्ट्रेट एंगल्स। सो 130 डिग्री, तो एक्स का वैल्यू कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री, ठीक है ना। 130 डिग्री तो एक्स इज इक्वल टू 130 डिग्री काम हो। नेक्स्ट y इक्वल टू देखो यहाँ पे ऑपोजिट वर्टिकल एंगल्स, ऑलरेडी हैव डिस्कस द प्रीवियस वीडियो क्लासेस। वर्टिकल पेयर ऑफ वर्टिकल एंगल्स ऑलवेज इक्वल, सो y इक्वल टू 30 डिग्री। कौन सा कॉज में हुआ, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है ना। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ओके। आई थिंक एवरीवन हैज अंडरस्टूड। तो y का वैल्यू वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, x का वैल्यू स्ट्रेट एंगल से आ चुका है। इसके बाद हमको प्रूव करना है सो दैट AB पैरेलल CD। जब AB पैरेलल CD होगा एंड ट्रांसवर्सल इज गिवन, देखो दिस लाइन इज ट्रांसवर्सल, सो
तुमको देखने हैं पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है कि नहीं देखना है, नहीं तो पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल इक्वल देखने है। तो यहाँ पे देखो हम लोग को यहाँ पे एक्स देखो ए भी 30 डिग्री 130 डिग्री, सो ए पेयर ऑफ देखो ऑल्टरनेट इंटरएंगल्स, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 130 डिग्री एंड एक्स एंड वाई देखो एक्स एंड वाई alternate interior angles, ओके इंटीरियर एंगल्स समझ गए चीज को। एक्स एंड वाई क्या है, जो एक्स एंड वाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके एंड दे आर इक्वल टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ इक्वल देखो बेटा है ना। देखो हम एक्स वाई इक्वल टू वाई इक्वल टू 130 डिग्री, so x and y the alternate interangles and they are equal to each other, both are equal, so AB and CD देखो ये लाइन को हम लोग को पैरेलल कर देते हैं, therefore AB parallel to CD, hence proof। ठीक है ना बेटा, हम लोग को प्रूफ कर दिया, ठीक है ना, hence proof हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, so next question is that in the figure AB parallel to CD, AB parallel to CD given दे दिया, तो CD parallel to A, AB parallel CD and CD parallel A, अगर A इनके साथ पैरेलल है, अगर A इनके साथ पैरेलल, तो AB parallel you can write also AB parallel to CA, ठीक है, AB parallel to EF बेटा, ठीक है ना बेटा। हम यदि AB parallel CD होगा, CD parallel यहीं पे, so you can write AB parallel to CF, हम लोग लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो एक्स एंड वाई, अगर हम लोग यदि इसको मिटा देंगे ओनली ए एंड ओनली देखो हम लोग का ई एफ को रखोगे, ई एफ एंड ए बी एंड ट्रांसवर्सल देखो यहाँ एक्स एंड देखो जेड, ओके, तो दिस इज द ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। देखो इसको हम लोग को देखो ऑल्टरनेट एंगल ऑलवेज इक्वल होगा बेटा, ठीक है ना। तो एक्स देखो वाई के साथ इक्वल हो रहा है, हमको यहाँ पे गिवन दे दिया y is to j equal to 3:7, so let first of all find the let y equal to 3k and z equal to 7k, you can write also। देखो y and z y को look at करो, y is here, okay, y and z is here, okay, so देखो look at y equal to, as well as you can also देखो opposite vertical y, you can write also this is the y, this is vertically opposite angle, so y plus z तुम्हारा co-entry angle, sum of the chord given 180 degree, so therefore y plus z equal to 10k, है ना 10k, तो y plus z equal to, and we know that y plus z equal to 180 degree, it is co-interior angles, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे हम लोग cos ले लिया, तब यदि y plus z equal to 180 degree हुआ, here y plus z equal to 10k, therefore हम लोग को लिख सकते हैं देखो 10k equal to 180 degree, ओके, इक्वेशन में डिग्री नहीं लिखा जाता है। Then you can write also k equal to 180 by 10, 0 cancel, and k equal to 18. So you can write also, therefore y equal to देखो 3 into 18 degree means 54 degree, ठीक है ना, and then z equal to 7k, 7 into 18 degree equal to 6 and 126 degree. So we can देखो find the x का वैल्यू, x equal to, you can देखो y का वैल्यू हम फाइंड कर दिया 54 डिग्री, z equal to and x, देखो x is the alternate angle, ऑलरेडी हम देखो फाइंड करके यहाँ पे
x इज द ऑल्टरनेट एंगल ऑफ द z। सर z के साथ x इक्वल हो जाएगा बेटा, जो x का वैल्यू जितना दे दिया यहाँ पे देखो, ऑल्टरनेट x इज हियर देखो, दिस इज ऑल्टरनेट एंगल, दिस इज द इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, इक्वल होगा तो x जितना डिग्री होगा z उतना ही होगा, तो z ऑलरेडी हम लोग का x इक्वल टू 126 डिग्री। ये भी तीन लोग का हम लोग का तीनों आंसर यहाँ पे आ गया बेटा, ठीक है ना, राइट आंसर। ओके, so now note down on your copy, pause this video. Okay, next question will come here. Okay, student, the question 3, the given figure देखो, the figure AB parallel to CD, and given, and then EF perpendicular to CD. This is the perpendicular CD, ठीक है ना? Okay, EF parallel to EF perpendicular to CD. This is the symbol of the perpendicular, this symbol. So and GED means this angle equal to 126 डिग्री। समझ गए चीज को, यहां से यहां तक एंगल का वैल्यू। एंड EF परपेंडिकुलर टू CD होने के कारण, बिकॉज EF परपेंडिकुलर CD, दिस एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, परपेंडिकुलर इट इज ऑल्सो 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तुमको फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल AG। एंगल AGE, ऐसे बोलो तो बेटा, ये एंगल किसके साथ इक्वल, एंगल AGE अगर GF देखो यहाँ पे ट्रांसवर्सल, क्योंकि दोनों को टच किया, AB पैरेलल लाइन को, GE ट्रांसवर्सल हिसाब से यूज हो रहा है। ट्रांसवर्सल होने के कारण AG इसके साथ एंगल GED, ठीक है ना, इसके साथ इक्वल, GED एंगल इक्वल टू 126 डिग्री। कौन सा कॉज में हो रहा है बताओ, इसका कॉज देखो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण ये लोग इक्वल होगा। तो यहाँ पे मेरा वैल्यू कितना आएगा, AGE इक्वल टू 126 डिग्री। ये आंसर आ गया मेरा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, GEF एंगल GEF कैसे फाइंड करोगे, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल। देखो इन द फिगर GEF दिस एंगल, ये एंगल को वैल्यू फाइंड करोगे। देखो यहाँ पे GED 126 डिग्री, उसमें दीजिए एंगल को हम माइनस कर दें, 90 डिग्री को यदि माइनस करेंगे, देखो दिस एंगल से, ये एंगल से हम यहाँ से ये एंगल को यदि, ये तो 90 डिग्री, ये एंगल को यदि माइनस करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा। तो एंगल कैसे कर बताओ, कौन सा, तो हम यहाँ पे जो 90 डिग्री माइनस हो जाएगा बेटा यहाँ पे, तो 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ये फ्रॉम द फिगर बेटा, ये फिगर से, अकॉर्डिंग टू द फिगर, फ्रॉम फिगर से हम कह सकते, फिगर total angle 126 degree, here this angle 90 degree, so minus करोगे 90 तक ये एंगल आ जाएगा, मेरे एंगल आ गया। चलिए एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये फ्रॉम द फिगर, कौन सा करो, फ्रॉम फिगर के अनुसार, फ्रॉम फिगर से हम लोग को लिख सकते हैं। देयरफॉर इसको सब्ट्रैक्ट करो, 6 एंड 3 36 डिग्री, ये आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन देखो, एंगल FGE, ठीक है ना, FGE। अब देखो, लुक एट द फिगर केयरफुली, FGE दिस एंगल फाइंड करोगे। ओके, एंगल को फाइंड करोगे। देखो हम लोग का AGE एंगल वैल्यू हम लोग का मान गया 126 डिग्री, हम तो फाइंड किया देखो यहाँ पे। सो राइट हियर, बड़ो देखिए, AB इज ए लाइन, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, दिस एंगल मिला के स्ट्रेट एंगल हो रहा। तो हम यहाँ पे कैसे फाइंड कर देखो, 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री,
देखो एक बार समझ गए इसको, दिस एंगल स्ट्रेट एंगल एक ही लाइन में गया देखो, ताहले दिस एंगल 180 डिग्री, 180 से 126 को माइनस कर दो, तो कम द रिजल्ट कितना हो जाए बताओ, बोलो 4 and 5 54 डिग्री। तो ये एक आंसर आ गया, ठीक है ना। ये कौन सा कॉज में है, स्ट्रेट एंगल से है, ठीक है ना बेटा, स्ट्रेट एंगल से आएगा। कॉज पूरा लिख दोगे बेटा, तभी तुमको सही समझ में, स्ट्रेट एंगल्स, ठीक है ना बेटा। देखो हम लोग का प्रीवियस चैप्टर में प्रीवियस वीडियो में हम लोग लिखा जैसे, चलो हमको 3 क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन डन हो गया, तो 126 डिग्री आंसर कितना हो गया, 36 डिग्री एंड 54 आंसर हो गया बेटा। ये बात तीनों और आंसर, ठीक है ना। ये भी मेरा आंसर कर दोगे, ये भी हमको 4 है, ये भी आंसर हम लिख देंगे, तो 3 आंसर मेरा से सामने आ गया बेटा। ओके, पॉज द वीडियो, नोट डाउन ऑन योर कॉपी। Okay student, the question number 4, in this figure if PQ parallel to ST is given and angle PQR equal to 110 degree, it is given, and angle RST 130 degree is given, find the angle QRS, so you will find this angle, a angle को find करोगे। how to find this angle, आसानी से नहीं आएगा बेटा। ओके, सो बड़ी इजी है, थोड़ा से काम कर लगना है, इतना इजी है, तुम समझ में नहीं आ रहे कैसे इसको फाइंड करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ, एक लाइन तुमको ड्रॉ करना पड़ेगा पैरेलल टू द एसटी और पीक्यू थ्रू आर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ड्रॉ ए बी लाइन पैरेलल टू एस टी और पी की, कुछ भी लाइन एस टी को भी दे सकते पी की, कारण एस टी पैरेलल टू पी की, सो ए बी पैरेलल टू, देखो ड्रॉ ए बी पैरेलल टू एस टी थ्रू आर पॉइंट, सो यू कैन ड्रॉ द पैरेलल लाइन्स थ्रू आर। ओके, दिस लाइन फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ, एक लाइन ड्रॉ करोगे एस टी का पैरेलल, इसका नाम दो ए बी। इट विल बी इजी टू फाइंड दिस एंगल। तो एस टी पैरेलल होने के, देखो ए बी पैरेलल होने के कारण हम लोग को ए सर्च ट्रांसवर्सल सर्च से वर्क कर ट्रांसवर्सल, एंड दिस इज पैरेलल, सो दिस इज द कोइंटर एंगल, दिस इज द कोइंटर एंगल, सो दिस इज फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। ओके, दिस एंगल विल बी, देखो the sum of this angle is equal to 180 degree, so it will be the, how to find out this angle SRB, angle SRB is equal to 180 degree minus 130 degree। ओके, कौन सा कॉज में, देखो दोनों एंगल मिल गए 180 डिग्री, कोइंटर एंगल, कौन सा कॉज, बिकॉज को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है बेटा, समझ गए, को इंटीरियर एंगल फोकट यूज कर ले। इसके बाद एंगल एस आर आर कम है, तो इसके बाद कितना आ जाएगा, देखो 50 डिग्री, राइट आंसर 50 डिग्री, ठीक है ना। है तो देखो अगर पीक एस टी, देखो पी क्यू पैरेलल टू एस टी एंड एस टी पैरेलल ए बी, सो एज वेल पी क्यू पैरेलल टू ए बी होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो पी क्यू पैरेलल टू ए बी है ना, बिकॉज पी क्यू पैरेलल एस टी हो चुका गिवन है। इसके बाद ए भी यहाँ पे कोइंटर एंगल हो रहा है, तो क्यू एंगल हियर एंड क्यू आर द ट्रांसवर्सल, सो एंगल देखो एंगल क्यू आर ए इक्वल टू, देखो ये भी कोइंटर एंगल से आ गया, देखो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, ये दोनों मिल के दिस एंगल और दिस एंगल मिलके 180 डिग्री, ये भी देखो को इंटीरियर एंगल, बिकॉज को इंटीरियर एंगल। जितना सारा कॉज तुमको देना पड़ेगा बेटा, जब भी कोई चीज को यूज करोगे एंगल हम को कॉज को देना पड़ेगा। सो इट विल बी द, देखो 70 and 70 डिग्री, सो राइट हियर 70 डिग्री। ओके, नाउ यू विल फाइंड इजीली, तब काम हो जाएगा, दोनों पूरा 3 एंगल्स मिलकर 180 डिग्री, देखो यहाँ पे 70 120 डिग्री, सो दिस एंगल कम हियर,
Therefore एंगल देखो यहाँ पे एंगल हम लोग को निकाल सकते हैं कैसे, एंगल क्यू आर एस, इट इज द क्वेश्चन। देखो 180 डिग्री minus this sum of these two angles, okay, 70 degree plus 50 degree, ठीक है बेटा। so 180 degree minus 120 degree sum करोगे then it will be the 60 degree. This is the answer बेटा. so this is the question. Okay, you will find pause this video, note down on copy. Okay student, the question number 5, figure this in figure AB parallel to CD, AB parallel to CD and APQ equal to 50 degree already written, and the figure and angle PRD 127 already have written on this figure. So how to find the value x and y? X is here, okay, this is the x. Okay, so x का value find करो, x is here. Now how to find? Automatically देखो AB parallel to CD is given and PQ is transversal, ठीक है बेटा। यदि AB parallel to CD and PQ transversal देगा तो इसका अल्टरनेट एंगल देखो, दिस एंगल अल्टरनेट एंगल होंगे, ओके। सो x equal to एंगल APQ, कौन सा कॉज में होगा बताओ तो, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना बेटा। सो APQ equal to 50 degree, okay, 50 degree. Now this implies you can use, this implies x equal to 50, therefore x equal to 50 degree, okay। एक आंसर मेरा पास आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द y कैसे फाइंड करोगे? अगेन देखो AB पैरेलल CD, AB पैरेलल टू CD and PR, here PR is transversal, ट्रांसवर्सल होने के कारण देखो A इनका अल्टरनेट एंगल, पूरा एंगल का अल्टरनेट एंगल हो गया। सो ओके, सो एंगल APR is equal to एंगल PRD, करेक्ट बेटा। देखो APR दिस एंगल, टोटल पूरा दिस एंगल is alternate because AB parallel CD and PR transversal, already written. Next right, तो AP equal to कितना होगा था, तो therefore angle APR equal to 127 degree, ठीक है ना। ये alternate लिखा because alternate इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना बेटा। पहले जरूर लिखो कॉन्जुगल अल्टरनेट एंगल 120 डिग्री, तो APR इक्वल टू 126 डिग्री, टोटल एंगल इज 100 डिग्री, तो 50 यदि माइनस करो तो काउंट द y एंगल, सो देयरफॉर y इक्वल टू 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, देयरफॉर y इक्वल टू देखो 7 and 70 डिग्री, ये भी आंसर आ गया बेटा। ओके, पॉज द वीडियो, नोट डाउन ऑन योर कॉपी, ओके। Hello student, the question number 6. In the given figure, देखो PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. देखो PQ and RS, ठीक है ना, placed parallel to each other. तो इसका मतलब क्या होगा, PQ parallel to RS is given. Okay, this is the physics chapters. Okay, so AB, a ray strike at B and reflected ray, this is the incident ray and reflected ray and strike at the C and again reflected ray CD. So you have to prove, we have
to prove that AB parallel to CD. हमको AB parallel to CD prove करना है. Okay, so how to? So use the rule for physics. So यदि अगर ये लाइट इसके से जाएगा, तो हम लोग को ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करना है. ओके, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो. ओके, PQ. So draw and perpendicular and this is the normal. So BE. तो फर्स्ट हम लोग का ड्रॉ at B perpendicular to PQ. ठीक है ना? BE perpendicular to PQ. Again, and draw देखो at C and CF according to the physics rule बेटा, light chapter CF. Okay, at CF perpendicular to RS. ठीक है ना? CF perpendicular to RS को perpendicular ड्रॉ करें. कि नॉर्मल हमको चाहिए फिजिक्स का रूल. नेक्स्ट, यू नो दैट एंगल ऑफ we know that angle of incidence is equal to angle of reflection. Okay, sorry, reflection. ठीक है ना? एक हम लोग को नो ना इन द फिजिक्स चैप्टर, मैंने लाइट चैप्टर में फिजिक्स सब्जेक्ट में एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो हियर this angle is the angle of incident and this angle is the angle of reflection. Both are equal. Suppose this angle x and this angle x हो जाएगा. Okay, according to same rule. इसके बाद देखो, जब हम BE perpendicular to PQ and CF perpendicular to RS, so BE therefore the angle देखो इसमें इधर एंगल रूल फॉलो हो गया, तो दिस एंगल so this reflection angle equal हो जाएगा. then BE parallel to CF and जैसे ये BE के पैरेलल है and BC is a transversal. ठीक है ना? जब इसको ये पैरेलल है, देखो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, देखो कहने ये दोनों पैरेलल के ऊपर परपेंडिकुलर, सो इट इज द ट्रांसवर्स हिसाब से वर्क कर रहे. तब दिस एंगल एंड दिस एंगल अल्टरनेट एंगल हिसाब से आ रहा है. सो दिस एंगल इक्वल हो गया एक्स. सो एज वेल एज द रिफ्लेक्शन एंगल, देखो ए दिस इज द तुम्हारा इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ए भी ऑल्सो एक्स हो जाएगा. ठीक है ना? समझ गए चीज को बेटा? तो रिफ्लेक्शन के कारण हम लोग को यहाँ पे देखो एंगल EBC is equal to angle FCB equal to x. ठीक है बेटा? ये कौन सा कॉज में? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है ना? अल्टरनेट इंफ्लुएंस के कारण हो. इसके बाद देखो आफ्टर दैट दिस एंगल रिफ्लेक्स के कारण हम लोग को फ्लो कर रहे थे एक्स एंड एक्स. अभी दोनों एंगल को मिल के दिस एंगल वैल्यू कितना होगा? देखो एंगल ABC फ्रॉम देखो x प्लस x इक्वल टू 2x एंड देन एंगल BCD equal to also देखो एंगल BCD
then this angle plus this angle ABX plus X equal to 2X. ठीक है ना बेटा? हम यहाँ पे एंगल यहाँ पे तुम लिख सकते हैं सपोज दैट करके यहाँ पे वी नो दैट एंगल हियर जो यहाँ सो यू कैन राइट ऑल्सो देखो एंगल हियर एंगल जब ड्रॉ कर लिया लेट करके लिख सकते हैं लेट हियर एंगल ABE एंगल ABE BX. ठीक है ना? हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ प्रॉमिस कर लिया क्योंकि x को क्या व्हाट इज द s यू कैन सो फिगर इन द राइट इन द फिगर is right then x to x. therefore angle देखो angle ABC is equal to angle BCD both are 2x degree both are 2x degree. so therefore angle ABC and angle BCD the angle BCD are equal मतलब एंगल ABC and एंगल BCD ये दोनों क्या है अल्टरनेट एंगल और अल्टरनेट एंगल आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है ना? देखो आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स they are equal to each other. ठीक है बेटा? ये हम लोग को दिखाई पड़ रहा है बोथ आर इक्वल हम यहाँ पे शो कर दिया इक्वल. सो देयरफॉर जब अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा देयरफॉर AB पैरेलल टू CD. ठीक है बेटा? हेंस प्रूफ हो गया बेटा. ये आंसर आ गया बेटा. प्रूफ हो गया. समझ गए चीज को हाउ टू प्रूफ. सो पॉज दिस वीडियो नोट डाउन ऑन योर कॉपी बेटा. हेलो बच्चों देखो बेटा हम एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम अपने से बनाए एनसीईआरटी को छोड़ के 6 क्वेश्चन था. एकदम आराम से करोगे. मैथ एकदम इजी अंडरस्टैंड होगा तो हाथ का गंदी के लगा ऐसे छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं है बेटा. आराम से करोगे और मेरा वीडियो बार बार देखोगे और लाइक करोगे एंड सब्सक्राइब करोगे. प्लीज तुम लोग को सब्सक्राइब करोगे लाइक करोगे बेटा. अगर तुम लोग को मदद मिलेगा तो हेल्प मिलेगा. हम तो आई थिंक एवरीबॉडी हेल्प करेगा मेरा वीडियो. ये मेरा चैलेंज बेटा. देखो इसमें फिगर में इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. देखो हेयर इज द एक्स. द लाइन्स AB पैरेलल टू CD एंड EF इज ए ट्रांसवर्स. बोथ दोनों अलग क्वेश्चन. A one question and this is the second question and there are two figures. एक फिगर से x का वैल्यू फाइंड कर करें एक फिगर से फ्रॉम दिस फिगर. लेकिन इसको हम क्यों दिया तुम लोग हम लोग जो सीखा था पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होता है एंड सम ऑफ द को इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री. एक कंडीशन यूज करो बेटा. इसमें हम पेयर ऑफ देखो पेयर ऑफ this is the pair of corresponding angle both are equal. So use this rule. So you can write also the 4x minus 20 is equal to 2x plus 30. कौन सा कॉस्मेट पेयर ऑफ है ना पेयर. Here 4x minus 20 this is the and is equal to 2x plus 10. Here that this is the rule of pair of corresponding angle. Corresponding angles. ठीक है ना? So pair of corresponding CORRES P1D corresponding angle. ये वाला हम लोग रूल फॉलो किया. Then linear equation. Then 4x minus 2x. Okay, transpose 2x left hand. So this sign will be changed. Next 10 plus 20. So this is the transpose minus 20 to the right hand. So change their sign. Then this implies 2x equal to 30. This implies x equal to 30 divided by 2. So it will cancel 15. So this is the x equal to 50. So value of the x equal to कितना हो गया? Therefore in this figure first question x equal to 15 आ गया. This is the answer. Okay. ये तो क्या रहा? In this figure the second ये तो first figure में था and second figure में
Okay, we will do the second figure. This is the rule of the here. This is the co-triangle. Sum of the co-integral equal to 3x plus 5 plus 4x equal to 180 degree. So sum of co-triangles equal to यहाँ पे लिखो sum of co-triangles, sum of co-interior angles is equal to 180 degree. So ये rule follow किया ध्यान करो, sum of them. So this implies linear equation follow करो. This is about 3x and x equal to 7x equal to 108. So you cannot write the degree in the equation. So only write 180 and then transform the 5. So this implies 7x equal to the 5 7 175. This implies x equal to 175 by 7. ठीक है ना बेटा? इसके बाद कैंसिल करो. देखो 7 2 जा 14, 3 carry 5. So this implies x equal to 25. This is the answer from the second figure. So this is the true answer. This is the most important. So corresponding angle, alternate angle का rule and co-triangle का rule करोगे सब कुछ and vertical opposite angle का यूज करोगे सब कुछ कर लोगे. बार बार मेरा वीडियो देखोगे तुम लोग के पास हम रिक्वेस्ट करोगे प्लीज सब्सक्राइब करोगे एंड लाइक करोगे यदि तुम लोग का मदद मिलेगा. अब मेरा वीडियो बार बार देखोगे तुम लोग का सब 10th क्लास का भी इजी हो जाएगा. थैंक यू. ओके बाय.